Welcome students. Today we are going to discuss the ISAT practice paper 2 and we will be discussing the mental ability part. So without wasting time, let's start with the first question. So the first question written over here is find the missing numbers and the numbers are given 64, 144, 256 and 400. I guess this will be a very easy question because if you have learned square numbers, this one is after looking at the numbers only you can identify that they are square numbers, right? So 64 is a square of 8, so 8 squared. 144 is a square of 12, so this is 12 squared. 256 is a square of 16, so it is 16 squared, and 400 is a square of 20, so 20 square. Now if you see on the base numbers we are adding 4, so 8 plus 4 gives you 12, 16 plus 4 gives you 12 plus 4 gives you 16, 16 plus 4 gives you 20. So next square number will be 24 squared. And if you all have remembered numbers, square numbers from 1 to 30, then you will know that the square of 24 is 576. So the correct answer for this question was option number D, 576. So let's move on to the second question now. Okay, now see in this question what they have given, how many pairs of letters in the word approval are there, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet. The letters should be in the same order as in the English alphabet. So for this question we will be needing alphabets from A to Z corresponding to the numbers. Okay, like A corresponds to 1, B corresponds to 2. So the same way we will have to write this down. So with the help of that we will solve this question. So let me write it down. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Okay, so this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. Now see, now what we are going to do in this, see the word given to us is approval, A P P R O V A L, and note one thing over here that they have given that the letters should be in the same order as in the English alphabet. So we are writing in this order, so in the same way we have to identify over here. So first of all we will write the corresponding numbers to each of the alphabets given over here. So A is 1, P is 16, so below P I should write 16. Over here also I will write 16. Then I have R, in place of R I will write 18. O is 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15. V क्या दिया हुआ है, V given to V is 22, V corresponds to 22. A is again 1 and L is 12. Okay, now see, start from 1. If you go in this order, after 1 you have 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So none of the places are corresponding to the numbers which I am saying, right? Next we have 16. See, after 16 you have 17 and after 17 you have 18. So P and R is one pair which occurs in the same sequence. Okay, then okay, 16, 17, 18. You have to continue checking 16, 17, 18. ये होगा 19, O को हम भूल गए, O होगा 19, 20, 21, 22. ठीक है, none of them is corresponding. Now let's jump on the next alphabet, which is again P. So 16, the number is 16, 17, 18, 19, 20. Okay, again it is not corresponding to any of the numbers. So let's move on to the next alphabet then. Then we have 18. After 18 we have 19. But हमारे पास क्या है, 15 है. 20, 21, 22. No, this is also not corresponding to any of the number.
then we have 22. So after 22 we have 23 and 24. This is also not corresponding. Then finally okay, before that हमारे पास 1 है, 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, बट यहाँ पे तो 12 दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता है. सो ओवरऑल इसमें एक ही पेयर ऐसी है जो अगर अल्फाबेटिकली देखो तो अब PQR, ठीक है, PQR, P और R के बीच में एक अल्फाबेट होता है, वैसे यहाँ पे भी ये P और ये R के बीच में एक अल्फाबेट था. सो दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज B इक्वल्स टू 1. तो एक ही ऐसी पेयर है जो एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट पे भी इसी ऑर्डर में रहती है जिसके बीच में एक अल्फाबेट रहता है, और ये वर्ड अप्रूवल में भी ऐसी एक ही पेयर है. सो नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Now the next question is dependent upon distance and direction. Basically it is direction given over here. Okay. So what is given? A boy walks a while facing towards the north. यानी एक लड़का है यहाँ पे जो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है. He turns to his right. अब क्या थोड़ा चल के वो राइट में टर्न ले लेता है. And continues to walk. Continue यानी ये चलते रहता है. Then later he turns left. ठीक है, लेफ्ट टर्न लेता है. And finally turning to his right, ठीक है, राइट टर्न करके यहाँ पे वो समझ लीजिए स्टॉप कर देता है, ठीक है. So in he stops. Which direction is he facing now? ठीक है, तो he is facing in this direction obviously. And which direction is this? This is east direction. So the answer for this was east. Then going on to the next question. The next question is okay, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम इसे कैसे समझेंगे? वही जो आपको नोटेशन बताया है मैंने, दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल, राइट. और रिलेशन के लिए अगर ऐसा रिलेशन है, दिस इज ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा रिलेशन है तो वो है हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, सो व्हाट इज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज माई मदर्स. ओके, यानी ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसकी मदर्स हस्बैंड फादर इन लॉ, दैट मीन्स फादर इन लॉ यानी वाइफ के पापा हुए, फादर इन लॉस सन, यानी इनका एक बेटा भी है, यानी ये भाई बहन हो गए. सन डॉटर टू मी, इसकी बेटी, ठीक है. ओके, तो अब शी विल बी व्हाट, ये जो गर्ल है वो आपकी क्या लगी, यहाँ पे आप हो, समझ लो. अगर आप मेल हो तो आप ये बनाओगे, फीमेल हो तो आप सर्कल बनाओगे. तो ये क्या हुई, आपकी कजिन हुई, ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन में कजिन नहीं है. ओके, हम सिस्टर नहीं मान सकते, सिस्टर यानी रियल ब्रदर और सिस्टर को ही कंसिडर किया जाता है एज अ सिस्टर, अदरवाइज ये क्या हुआ, कजिन हुई आपकी. तो यहाँ पे आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, बिकॉज कहीं पर भी कजिन दिया हुआ नहीं है. ओके, सो नन ऑफ दिस वॉज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ फिगर एक्स consisting of dots is given. Choose an alternative figure which has the same conditions of region in which the dots must be placed. अब देखिए फिगर देखेंगे तो एक जो डॉट है दैट इज कॉमन टू व्हाट, वो कॉमन है सर्कल और स्क्वायर में, ठीक है, ये वाला डॉट. और नीचे वाला जो डॉट है वो ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कि अगर मैं डॉट को यहां प्लेस करता हूं, ठीक है, तो पहला तो वो ट्राइंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, ठीक है. अब दूसरा डॉट कैसा होना चाहिए, ये देखिए, ये हमारा पहला डॉट है, ये हमारा दूसरा डॉट है. तो दूसरे डॉट की कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, बट पहले डॉट की नहीं हो रही है. पहला डॉट किस में होना चाहिए, पहला डॉट सर्कल और स्क्वायर में कॉमन होना चाहिए. तो यहाँ पे तो सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगुलर का ही रीजन बन रहा है, सर्कल और स्क्वायर का रीजन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पे अगर आप एक डॉट बनाओ तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है आपकी कि जो डॉट है वो दैट शुड बी कॉमन टू ओनली स्क्वायर एंड सर्कल, यस, तो वो है. और अगर डॉट को आप यहाँ बना दो तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, जो कि दैट डॉट शुड बी कॉमन टू ऑल द थ्री, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर. तो डेफिनेटली बी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें. रेस्ट ऑफ द ऑप्शन नो नीड टू सी, बिकॉज जब हमें हमारा आंसर मिल गया है और हमें पता है एक ही आंसर करेक्ट रहने वाला है, सो व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम इन सीइंग दोज ऑप्शंस, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू अस इज
फाइंड दी वाटर इमेज। अब देखो वाटर जनरली आप सीनरी बनाते थे तो आप ऐसे पहाड़ बनाते थे, देन आपकी नदी यहाँ पे होती थी और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता था, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम वाटर इमेज देखते हैं तो व्हाट डू वी डू, न्यूक्लियर, ठीक है। तो यानी पानी यहाँ पे है ऐसे और न्यूक्लियर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो N ये U ऐसा होगा, ये C ऐसा होगा, करेक्ट। तो कहाँ पे दिख रहा है N U C L आपका ऐसा होगा, ओके विच वन, ये वाला शायद हो सकता है N U C L। अब E जो है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी ये भी कैंसिल आउट, N U C L E ये वाला करेक्ट हो सकता है A, ठीक है, और R रहेगा आपका ऐसा, ओके करेक्ट। तो दैट मीन्स ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी। नाउ गोइंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फिगर अ प्लेन व्यू ऑफ अ क्यूब एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट, ठीक है। सो अब बेसिकली ये नेट दिया हुआ है एक क्यूब का, तो आपको इमेजिन करना है, आपको इसको फोल्ड करना है और एक क्यूब के फॉर्म में इसको लेकर आना है, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। आपको पूछा गया है विच फेस विल बी ऑपोजिट टू द फेस, ये पूरा जो शेडेड है, एंड आई थिंक अगर जब आप फोल्ड करोगे तो इसके एग्जैक्टली सामने ये वाला फेस होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, ठीक है। ओके, थैंक यू।